ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗର ଏକ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା କାଳର କପୋଳ ତଳେ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲିଖିତ। ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସୁପରିଚିତା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପ ରଚନାରେ ସେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏକଦା ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି କଥା ଓ ସପ୍ତଦଶୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିରେ ସଂକଳିତ। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଅବିସମ୍ବାଦିତ। ଅନୁଦିତ କୃତି ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ ନିମିତ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। 1998ରେ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସ ଆଧାରରେ କଳିଙ୍ଗର ଜାତୀୟତା ବୋଧ, ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ହିଂସା ପ୍ରମତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଶ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ଗଳ୍ପରେ। ତଳେ କ୍ଷୀଣ ଧାରରେ ବହିଯାଉଥିବା ଦୟାନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ ଫୁଲି ଫୁଲି ଉଠିଲା, ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ ହୋଇଗଲା ଲାଲ। ପାଣି ନୁହେଁ, ରକ୍ତର ନଦୀ। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏଇ ବଡ଼ ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଉପରେ କେତେବେଳୁ ବସିଛନ୍ତି ସେ। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର। ୟାକୁ ତୁମେମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆସିଛନ୍ତି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବହୁ ତଳେ ମଗଧରୁ ଆସି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା? କାହାକୁ ପରାଜିତ କରି ଅଶୋକ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ନିଜର ବିଜୟ କେତନ? ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ। ସେଥିରେ ଅହିଂସା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ଅହିଂସା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ରାଜାର ରନ୍ଧନଶାଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର ରନ୍ଧନଶାଳାରେ କେତୋଟି ମୟୂର ମାଂସ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କେଉଁଠି କିଛି ଲେଖାଯାଇନାହିଁ। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ସେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ପଥର ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ କିରଣ କେତେବେଳୁ ଦୟାନଦୀର ଛାତି ଉପରୁ ଅପସରି ଗଲାଣି। ରକ୍ତର ସୁଅକୁ ଚାହିଁ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର କ୍ଷେତବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମିଳାଇ ଗଲାଣି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରିଗଲାଣି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ତାହାରି ଭିତରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଶବ୍ଦ। ସେ ଆହୁରି ଟିକିଏ କାନ ଡେରିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ଆଉ ହ୍ରେଷାରବ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣତ୍କାରରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଧଉଳି ପର୍ବତ। ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ଗୁଞ୍ଜି ବସି ରହିଲେ ଅଙ୍ଗଦ। ଭୟରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ତାଙ୍କର କମ୍ପି କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ ସେହିଭଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଖିଆଲ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ବେଶ ପୋଷାକରୁ ମନ ହେଉଛି ରାଜବଂଶର ଲୋକ। ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୀପ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଭୟ ହାତ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ ଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଯେପରି ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା।
से ସେହି प्रसारित हाथटी को धरी ठिया होई पड़ी पचारिले, आपण कोन कलिंगर महाराजा? ना, मो सहित आस, तुमको मु नहीं जीवी कलिंगर महाराजांको पाखकू। निमंत्रण नुहे, आदेश भली शुणागला ସେହି गंभीर स्वर एवं मंत्रचालित अंगद अनुसरण कले ସେହି दीर्घदेही पुरुषंकु। किंतु तांको गति सहित ताल पकाई चलिबा सहज नथिला। अटकी जाउथिले अंगद। मझिरे मझिरे थरे मात्र पछरु कहि उठिले, आपणक सहित चलिबा तो भारी कष्ट, दयाकरी गति टिकिए शिथिल करंतु। मुहूर्तक पई मध्य पछकु न चाहिले से कहिले, मु तो दुनिया रे सबुठारु शीघ्र चले। कलिंग राजप्रसादर दरबार कक्ष निकटरे पहुंचाई देई केउआडे चलीगले ସେହି व्यक्ति। अंगद देखिले महाराणी कुरुबाकी धीरे धीरे ओह्लाई आसुचंती पाहाच परे पाहाच अतिक्रम करी दरबार कक्षकू। अंगद देखिले महाराणी कुरुबाकी धीरे धीरे ओह्लाई आसुचंती पाहाच अतिक्रम करी दरबार कक्षकू। तो एठी होउची कलिंगर महाराणी हेउचंती किए ना कुरुबकी। ठीक अछि। दुई पटे दास दासीगण मुंड नुआई सम्मान जनाउछंती। महाराणींकर प्रवेश मात्रे दरबार कक्षर समस्त गुंजन हठात स्तब्ध होई गला। पात्र मंत्री परिषद वर्गंक समेत समस्त सेना नायक माने ससंभ्रम अभिवादन जणाइले महाराणी को। कुरुबाकी निजे आसन ग्रहण करी अन्य मानंकु बसिबाकु निर्देश देले। गृहरे आसीन समस्त मुहरे गभीर उत्कंठा। केही कान डेरिले हुए तो सुनी पारंता केवल द्रुत हृत्स्पंदन शब्द। समस्त उद्वेगर अवसान घटाई महाराणी कुरुबाकी घोषणा कले, महाराजंकर अवस्था कौनसी परिवर्तन होई नाही, किंतु से आपण मानक विचार पाई एक वार्ता पठाइचंती। केवल महामंत्री निज आसन उठी कहिले, आज्ञा करंतु महाराणी, कलिंग महाराजांकर समस्त आदेश शिरोधार्य। कुरुबाकी उपस्थित समस्तंक उपरे थरे आखि बुलेई आनिले। तापरे धीरे धीरे कहिले, आमर एकमात्र दायाद राजजेमा राजेश्वरी को महाराज ए राज्यर दायित्व अर्पण करिसंती। पिला माने अंडरलाइन करो, आमर एकमात्र दायाद राजजेमा राजेश्वरी। बुझी पारलो? महाराजा ए राज्यर दायित्व अर्पण करिबाकु चाहंती। तांकर अनुपस्थिति रे वर्तमान ठारू से समस्त कार्य परिचालना करंतु बोली महाराजांकर इच्छा। आपण मानंकर कोन एथिरे सम्मति अछि? ये की अद्भुत कथा! राजा निजर उत्तराधिकारी मनोनीत करिवे, ये तो गणतंत्रर नियम। एठी पुणी पात्र मंत्री सभासद मानंकर सम्मतिर प्रश्न उठुची कोआडू? सभासद मानंकर मध्यरे केतेकंकर मुहर रेखा हठात कठिन होई गला। किंतु महामंत्री और अन्य माने एही प्रस्ताव को अति आग्रह रे ग्रहण करी नेई कहिले, ए तो खूब आनंदर कथा। पुत्र भली कन्या को मध्य राजसिंहासन प्रदान करिबा परंपरा ए राज्य रे रहिची। पुणी बुद्धि वीरत्व रे राजजेमा तो कोनोसी राजपुत्र ठारू गुणा नुहंती। समस्तंकर अनुरोध क्रमे सपति राजजेमा राजेश्वरी दरबार कक्ष को आसिले। सभासद मानंकु अभिवादन करी बसिबा परे से कहिले, पिताकुंकर इच्छा को आपण माने स्वीकार करि अछंती, सेथिपाई मु कृतज्ञ। किंतु आपण माने तो जानंती मु जने साधारण नारी। राज परिवार रे जन्म होईची सत, किंतु राजकार्य परिचालना करिबा संपर्क रे मोर कोनोसी अभिज्ञता नाही। ए कार्य मु ठीक भाबरे तुलाई परिबी बोली कोन आपण माने विश्वास करूछंती? जो माने नीरव रहिथिले सेमानंक मध्यरु जणे ठिया होई कहिले, किंतु वर्तमान तो खाली साधारण भावरे राज्य चलाइबार अवस्था नाही। मगध सम्राट अशोक विपुल सैन्य बाहिनी धरी कलिंग आक्रमण करिसंती।
कलिंग उपकंठरे युद्ध आरंभ हो गलानी। अचानक आक्रमण रे आमर सीमांत बाहिनी संपूर्ण ध्वंस हो जाइछि। वर्तमान अति द्रुत बेगरे से माने राज्य भीतर को माड़ी आसुछंती। महामंत्री चिंतित स्वर रे कहिले, हाँ राजजेमा, कलिंग एक अति संकट मुहूर्त रे आसी पहुंची। मु से कथा जाने महामंत्री। एही मुहूर्त रे आमे रणकौशल स्थिर करी कार्य आरंभ न कले कलिंग को रक्षा करिबा संभव हेबो नाही। आपण माने कोन एथिपाई मो सहित सहयोग करिवे नाही? राजेश्वरी कंठर दृढ़ता एक अद्भुत प्रभाव सृष्टि कला। समस्ते समस्वर रे कहिले, हाँ निश्चय करिबु। एहा परे राजेश्वरी जहा कहिले ताहा अति विचित्र। मु आपण मानक मध्यरु एपरि 12 जन योद्धांकु चाहे जे माने आज मो सहित सम्मुख समर को जीवाकू प्रस्तुत अछंती। दरबार कक्ष स्तब्ध, समस्ते परस्पर मुह को चाहुछंती। केही जने क्षीणकंठरे कहिले, आजी? हाँ वर्तमान। आउ शुणंतु, एही 12 जन को मु मनोनीत करिबि नाही। जो माने स्वेच्छारे आगे आसीबे सेही मानंकु ही सांगरे नेबी। राजेश्वरी कथार प्रतिक्रिया देखादेला। एथर जन जन होई योद्धा निज आसनरु उठी ठिया हेले। सेमानंक भितरे राजेश्वरी पति भी थिले। एही संख्या 12 को अतिक्रम करि जाइथिला। एथर स्मित हसी राजेश्वरी अति नम्रतार सहित कहिले, एमानंक व्यतीत अन्य समस्तंकु एथर सभागृह त्याग करिबाकू मु अनुरोध करूछि। एही योद्धा मानंक सहित मोर किछि गोपन मंत्रणा करिबाकू अछि। अन्य समस्ते अभिवादन जणाई सभागृह छाड़ी चलीगला परे राजेश्वरी सेनाध्यक्ष मानंकु कहिले, प्रथम पर्याय रे मु केवल 12 जनंकु चाहिछि। आवश्यक हेले अन्य मानंकु मु परे डाकिबी। किंतु केही सभागृह छाड़ी जाउ नथिबार देखि से निजे सेही 5 जनंकु जिबा पई निर्देश देले, जो माने प्रथमरु तांकर नेतृत्व ग्रहण करिबाकू कुंठित थिले। पिला माने अंडरलाइन करो, से निजे सेही 5 जनकु जिबा पई निर्देश देले। तापरे आरंभ हेला राजेश्वरी मंत्रणा। गंभीर स्वर रे से कहिले, मगधर सेनाबाहिनी विपुल, अति आधुनिक अस्त्र शस्त्र रे सज्जित। सेमानंकु सम्मुख समर रे मुकाबिला करिबा पाई कलिंगर शक्ति नाही। सेथिपाई सेमानंकु परास्त करिबाकू हेले दीर्घ दिन धरी आमको युद्ध चलाई दिबाकू पड़िबो। आपण माने कोन एथिरे सम्मत? एही रण कौशल बुझिबाकू योद्धा माने एभली रणकौशल बुझिबाकू योद्धा माने अक्षम हेले मध्य समस्वर रे कहिले, निश्चय। राजेश्वरी कहिले, ताहाले प्रथम कथा हेला आमर आजिर निष्पत्ति संपर्क रे एठारे उपस्थित थिबा व्यक्तिंक व्यतीत आउ जने भी केही जेपरी न जाने सेथिप्रति आपण माने सजाग रहिबे। द्वितीयतः ए युद्ध रे केही जने सेनापति नहंती। आपण माने प्रत्येक जने जने सेनापति बोली मने रखिबे। एतिकी कही 12 जन जाकंकु पृथक पृथक भावरे निजकु डाकी अति निम्न स्वर रे राजेश्वरी किछि निर्देश देले। अंगदंक सम्मुख रे पुणी सेही पुरुष गुरु गंभीर स्वर रे निर्देश देले, एथर चाल देखिबो सेही कलिंग युद्ध जेउठारु मु तुमको डाकी आनिथिली। धौली अंचल थरी उठुची घोड़ा टापुर शब्द रे, अस्त्रर झंकार रे, आहत सैन्यंकर आर्तचित्कार रे। दया होई जाइची रक्तर नदी। केबे केमिति सुना जाउची सेनापतिंकर आदेश। कहार सेनापति? केउ सैन्य माने निहत हेउचंती? मगधर ना कलिंगर? दिन पर दिन बीती जाउची, मास पर मास भी। धाड़ी धाड़ी होई कलिंगर गाँ गंडारू लोक आसुचंती। हातरे खंडा, तलवार, तीर, बर्छा लढ़ई रे मिसुचंती। दयारे रक्तर सुओ घन होउची। शिविर भितरे बसिचंती चिंतान्वित सम्राट अशोक। आदेश को अपेक्षा करी पाखरे ठिया होइचंती महामंत्री। ए कौन हेउची महामंत्री? 4 मास हेला युद्ध चलीची।
पिला माने इठी अंडरलाइन कर 4 मास हेला युद्ध चली बुझी पारलो हजार हजार सैन्य मृताहत हेले आम पाखरु रसद शेष हेलानी आम पाखरु रसद शेष हेलानी याकु भी अंडरलाइन कर अथच आपण तो कहिथिले कलिंग को जय करने को मात्र 2 दिन लागिवो मात्र 2 दिन लागिवो बुझी पारलो पिला माने याकु भी अंडरलाइन कर रुग्ण महाराज युद्ध करने को अक्षम संगे संगे आत्मसमर्पण करिवे किंतु मु तो युद्ध शेष हेबार कोनोसी लक्षण देखु नाही किए ए युद्ध चलाउछि सम्राट को प्रश्नर कोनोसी उत्तर नथिला मंत्री को पाखरे अत्यंत विचलित स्वर से कहिले मु मध्य आश्चर्य हेउछि महाराज किए चलाउछि ए युद्ध केवल सैन्य नुहंती हजार हजार संख्या रे कलिंगर साधारण प्रजा युद्ध करने को आगे आसुचंती अद्भुत अशोक क्षुब्ध स्वर रे कहिले मु कलिंग प्रजा प्रशंसा सुनिबा को आपण को एठिकी डाकी नाही तुरंत ससम्मान रे ए युद्ध शेष करिवार व्यवस्था करंतु व्यवस्था करिछि महाराज महामंत्री सम्राट निकट को घुंची आसी निम्न स्वर रे किछि कहिबाकू लागिले परदिन प्रत्युष रे समग्र कलिंग राज्य रे नागरा बाजिला घोषणा करागला मगध सम्राट अशोक युद्ध रे एक विभीषिका देखि अत्यंत मर्माहत एही नरहत्या को से आज ठारू बंद करबा को निष्पत्ति कले केवल आज नुहे भविष्य रे मध्य सम्राट अशोक आ युद्ध करिवे नाही से बुद्धंक अहिंसा मंत्र रे दीक्षित हेले पिला माने अंडरलाइन कर से बुद्धंकर अहिंसा मंत्र रे दीक्षित हेले प्राय पुरुष शून्य कलिंग राज्य पक्षरे स्तब्धता नई आसिला योद्धा बेशरे असंख्य मृत और आहत सैन्य मान मध्यरे ए उज्जवल मूर्ति किए धौलीर जंगल भितरे मगध सेनापति प्रचंड युद्ध करी मृत्युवरण करिछि राजेश्वरी स्तंभीभूत अंगदंक सम्मुखरे पुणी से दीर्घदेही अत्यंत साहस संचय करी अंगद पचारिले किंतु इतिहास रे हंकर ना नाही काहेकि तुमे कोन जानो नाही इतिहास बारंबार प्रमाण कर देछि जे राजनीतिर ब्रह्मास्त्र हेउछि षडयंत्र पिला माने याको अंडरलाइन कर राजनीतिर ब्रह्मास्त्र हेउछि षडयंत्र तुमे खूब बड़ वीर होई थाई पारो किंतु जदि साम्राज्य स्थापन करि पारि नाहो तेबे इतिहास तुम नाम उच्च स्वर रे प्रचार करि परिबो नाही साम्राज्य रक्षा करिबा पई अथवा विस्तार करिबा पई तुमको षडयंत्र रो ब्रह्मास्त्र व्यवहार करिबा को हेबो कलिंग महाराजा बा तांको कन्या तो ताहा करि पारि नाहंती से द्रुत पछकु फेरी चलिबा को लागिले अंगद पाटी करी उठिले आपण कोन इतिहास पुरुष अंगद आखि खोलिले राति शेष होई आसुची शांति स्तूप उपरे आकाश रे केवल गोटिए तारा उज्जवल होई देखा जाउची पिला माने मु कालर कपड़ तले एहाकू तुम आगरे पढ़ी सुनाइली यार प्रश्न सबको मु तुमको पूर्व वीडियो रे देई देइची मु एहाकू पढ़िबार कारण हेउची तुमे माने मध्य मो सहित पढ़िबो ताहा द्वारा तुमरो प्रश्नावली रो उत्तर लिखिबा पई सहज हेबो एवं मने रहि जिवो रहिली जय जगन्नाथ।